પ્રેમથી બધા બોલશો ઓમ શાંતિ. પરમપિતા પરમાત્માના સાનિધ્યમાં વર્તમાન સમય શ્રાદ્ધના પાવન પવિત્ર દિવસોમાં આપણે સર્વ એકત્રિત થયા છીએ. કારણ કે આપણો ભારત દેશ આધ્યાત્મિક દેશ છે, જ્યાં ધર્મ માટે ખૂબ જ આસ્થા, વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધા છે. ભારત દેશની અંદર આવા વ્રત તહેવારોની ખૂબ ધામધૂમથી ઉજવણી થાય છે. એટલે 365 દિવસ કોઈને કોઈ ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ ચાલતી રહે છે. અને આવા ધાર્મિક દેશના આપણે ભારતવાસી આત્માઓ ખૂબ જ સૌભાગ્યશાળી છીએ. કારણ કે આપણો જન્મ ભારતમાં થયો અને પરમાત્માનું અવતરણ પણ ભારતમાં થયું. એટલે આપણે પોતાની જાતને ખૂબ જ સૌભાગ્યશાળી સમજીએ છીએ. તો અત્યારના જે સમયની અંદર દરેક ભારતવાસી ખૂબ જ પ્રેમથી, ભાવનાથી અને શ્રદ્ધાથી આ શ્રાદ્ધના પવિત્ર દિવસોને મનાવી રહ્યા છે. કારણ કે આ શ્રાદ્ધ છે એ પવિત્રતાની યાદગાર છે. અને આવા પવિત્ર દિવસોની અંદર ભારત દેશના કોઈ પણ વ્યક્તિ કોઈ પણ દેશમાં હોય તો પણ એમને આ દિવસોનું ખૂબ જ મહત્ત્વ હોય છે. કારણ કે એ દરેક લોકો પોતાના પૂર્વજો, પોતાના માતા પિતાઓને એ પોતાના દિલથી અને પોતાની શ્રેષ્ઠ ભાવનાઓથી એને યાદ કરે છે. એમને શ્રેષ્ઠ સંકલ્પોની શ્રદ્ધાંજલિ અર્પિત કરે છે. પોતાના જીવનમાં થયેલા અજાણતા કોઈ પણ પાપ કર્મને એ શ્રાદ્ધના દિવસે ક્ષમા માંગે છે. એ એવું સમજે છે કે આ દિવસે પિતૃઓની ક્ષમા માંગવાથી એના પાપમાંથી એમને મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે અને ખરેખર એમના આશીર્વાદનો એમને અનુભવ થાય છે. તો પિતૃઓના અને પૂર્વજોના આશીર્વાદ, એમના શુભ વાઇબ્રેશન, એમની શુભ પ્રેરણાઓ, એમના ગુણ અને એમના કર્તવ્યોથી પોતાના જીવનની અંદર એ ધારણ કરવાનો શ્રેષ્ઠ સંકલ્પ કરે છે અને જીવનની અંદર પરિવર્તનનો દ્રઢ સંકલ્પ કરે છે. આવો શુભ સંદેશ એ આપણને શ્રાદ્ધ દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે. શ્રાદ્ધના 16 દિવસ શા માટે? એ 16 દિવસની અંદર દરેક લોકો પોતાના પિતૃઓનું શ્રાદ્ધ કરે છે. તો એની પાછળ એક પૌરાણિક કથા છે કે એક વખત દાનવીર મહાવીર કર્ણ જ્યારે આ પૃથ્વીલોકમાંથી વિદાય લઈ મૃત્યુ બાદ એ સ્વર્ગલોકમાં પ્રસ્થાન કરે છે. સ્વર્ગલોકની દિવ્યતા અને ભવ્યતાને જોઈને ખૂબ જ પ્રસન્ન થઈ જાય છે. પછી એ ભોજન કરવા બેસે છે તો એમની થાળીમાં હીરા, મોતી, રત્ન અને માણેક એવી કિંમતી વસ્તુઓ એમની થાળીમાં પીરસવામાં આવે છે. બાકીના બધાની થાળીમાં 56 પ્રકારના ભોજન પીરસવામાં આવે છે. કર્ણ વિચાર કરે છે કે આવું કેમ? એ બધાની થાળીમાં જુએ છે તો સુંદર મજાના પકવાન છે અને બહુ પ્રેમથી એ લોકો સ્વીકાર કરે છે. જ્યારે કર્ણ છે એ ભોજન ખાઈ શકતા નથી. આ પ્રશ્ન એ દેવરાજ ઇન્દ્રને જઈને પૂછે છે કે ઇન્દ્રદેવ, મારી સાથે આવું કેમ? આનું કારણ શું? મારી થાળીની અંદર હીરા, મોતી, રત્ન પીરસવામાં આવે છે, જ્યારે દરેકની થાળીમાં 56 પ્રકારના ભોજન છે. ત્યારે ઇન્દ્રદેવ એમને જવાબ આપે છે કે હે કર્ણ, આપે આપના જીવનની અંદર ક્યારેય પિતૃઓનું શ્રાદ્ધ કર્યું નથી. પિતૃઓને ક્યારેય ભોગ લગાવ્યો નથી, એમની સેવા કરી નથી, એમને પ્રેમથી ક્યારેય યાદ કર્યા નથી. આપે જીવન પર્યંત હીરા, મોતી, માણેકનું દાન કર્યું છે. એટલે એના બદલામાં આપણને એ જ પ્રાપ્ત થઈ રહ્યું છે. કારણ કે જે તમે આપ્યું છે એ જ તમને અહીંયા મળી રહ્યું છે. હવે કર્ણ પૂછે છે આનો ઉપાય શું? કારણ કે મને તો ખબર જ નથી પિતૃઓના વિષયમાં, આજ સુધી હું તો એનાથી અજાણ છું. ત્યારે ઇન્દ્રદેવ એમને 16 દિવસ આપે છે. ઇન્દ્રદેવ કર્ણને કહે છે આજથી 16 દિવસ હું આપને આપું છું. આપ પૃથ્વીલોક ઉપર ફરી પ્રયાણ કરો. પૃથ્વીલોક ઉપર જઈ આપ આપના પિતૃઓને સંતુષ્ટ કરો, એમને ભોગ લગાવો, એમની સેવા કરો અને આપ પિતૃ ઋણને ચુક્ત કરો. પછી આપને અહીંયા ભોજન પ્રાપ્ત થશે.
અને ખરેખર ઇન્દ્ર ફરી પૃથ્વીલોક પર આવી અને આ દરેક ક્રિયા કરે છે. ખૂબ પ્રેમથી પિતૃઓનું શ્રાદ્ધ કરે છે, એમને ભોગ સ્વીકાર કરાવે છે, એમની સેવા પૂજા કરે છે અને બ્રાહ્મણોને ભોજન કરાવે છે. અને ત્યારબાદ ફરી જ્યારે સ્વર્ગલોકમાં જાય છે તો એને 56 પ્રકારના ભોજન ત્યાં પ્રાપ્ત થાય છે. હવે આ કહાનીનો ભાવાર્થ એ છે કે મનુષ્ય પોતાના જીવનની અંદર જે કંઈ કર્મ કરે છે એ કર્મ અનુસાર એના કર્મનું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. તો શ્રાદ્ધનો અર્થ થાય છે કે દરેક મનુષ્ય પોતાના જીવનની અંદર શ્રેષ્ઠ કર્મની શ્રેષ્ઠ કમાણી દ્વારા પોતાનું તો કલ્યાણ કરવાનું જ છે, પણ અનેક આત્માઓનું પણ કલ્યાણ કરવાનું છે. કારણ કે આપણે શ્રેષ્ઠ સંસ્કારો ક્યાંથી પ્રાપ્ત કર્યા? આપણા માતા પિતા પાસેથી. જેણે માતા પિતાની સાચા દિલથી સેવા કરી છે, એ તો મૃત્યુ બાદની વાત કરી, પણ આપણને એ સંદેશ પ્રાપ્ત થાય છે કે જે ઘરની અંદર જીવિત માતા પિતા છે એને સંતુષ્ટ રાખીએ, એને પ્રેમ આપીએ, એમને સેવા દ્વારા એમની દુઆઓ અને એમના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરીએ તો એ શ્રેષ્ઠ કર્મનું ફળ એ મનુષ્યને જીવન પર્યંત પ્રાપ્ત થાય છે. આ લોકની અંદર તો મળે જ છે, પણ અનેક જન્મોની એ કમાણી પણ એમાંથી કરી શકે છે. બીજી વસ્તુ કે નવરાત્રિ પહેલાં અને ગણેશ ચતુર્થી પછી આ 16 દિવસ શરૂ થાય છે. તો એનો અર્થ એ છે કે ગણેશ ચતુર્થી પછી આ શ્રાદ્ધના દિવસો શરૂ થયા. તો ગણેશજીની જીવન કહાનીમાં પણ એ જ બતાવવામાં આવ્યું છે કે ગણેશજી છે એ માતા પિતાના આજ્ઞાકારી બાળક હતા. એમણે માતા પિતાની ખૂબ સેવા કરી, માતા પિતા માટે એમને બહુ જ સન્માન હતું અને માતા પિતા જ એમના જીવન માટે સર્વસ્વ હતા, જેના ફલ સ્વરૂપે એમણે જીવનની અંદર દરેક સફળતા અને દરેક સિદ્ધિને પ્રાપ્ત કરી. એટલા માટે એને વિઘ્ન વિનાશક ગુણોના પતિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને એના પછી એવું કહેવાય છે કે જ્યારે એ સર્વ સિદ્ધિઓને પ્રાપ્ત કરે છે પછી આવે છે નવરાત્રિ. તો નવરાત્રિનો અર્થ જ્યાં શક્તિઓની પૂજા થાય છે, તો એ શક્તિ પ્રાપ્ત કરનાર એ દેવાધિદેવ, જેને આપણે મહાદેવ કહીએ છીએ, પરમપિતા પરમાત્મા, જેની પાસેથી એ શક્તિઓ પ્રાપ્ત કરે છે. જે પણ મનુષ્ય પોતાના જીવનની અંદર માતા પિતાની સેવા કરે એ સેવા દ્વારા એને પરમાત્માની શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. અને એ શક્તિ દ્વારા નવરાત્રિ પછી એ શક્તિ દ્વારા એવું કહેવાય છે છેલ્લે 10મો દિવસ, જેને આપણે દશેરા તરીકે ઉજવીએ છીએ. તો દશેરાનો અર્થ એ બતાવવામાં આવ્યો છે કે દશેરા અર્થાત આપણા જીવનમાં જે પણ કમી કમજોરીઓ છે એ દશહરા અર્થાત એ દરેક કમી કમજોરીઓને, દરેક બુરાઈઓને હરાવી એના ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરીએ ત્યારે દીપાવલી અર્થાત આત્માનો દીપક પ્રજ્વલિત થાય છે. અને જેની આત્માનો દીપક પ્રજ્વલિત થાય છે એ દરેક આત્માને પ્રકાશ આપી શકે છે. તો શ્રાદ્ધનો એક અર્થ એ થાય છે અંધકારમાંથી પ્રકાશમય જીવન તરફ પ્રયાણ. અંધકાર અર્થાત અજ્ઞાન અને પ્રકાશ અર્થાત જ્ઞાન. શ્રેષ્ઠ કર્મનું જ્ઞાન આપણને આપનાર એ કોણ છે? તો જીવનની અંદર એવું કહેવાય છે કે 3 લોકોનું ઋણ આપણા દરેક ઉપર છે. સૌથી પહેલું ઋણ છે પિતૃઓનું. તો પિતૃઓનું ઋણ ચૂકતું કરવા માટે શું કરવાનું? તો પિતૃ ઋણ અર્થાત પિતૃ ના હોય તો આપણું પણ અસ્તિત્વ ન હોય. જેનાથી આપણું અસ્તિત્વ છે એવા આપણા પિતૃઓ, જેને આપણે પ્રેમથી યાદ કરી, શ્રદ્ધા અને ભાવથી એની સેવા કરીએ, એને સંતુષ્ટ રાખીએ, એને ખુશ રાખીએ, ત્યારે આપણે પિતૃ ઋણમાંથી ચૂક્ત થઈએ. હવે આપણા જે માતા પિતા છે એને આપણે સંતુષ્ટ રાખવાના, જે જીવિત છે એને ખુશ રાખવાના. એને જીવનની અંદર આનંદ અને ખુશીની પ્રાપ્તિ થશે તો આપણું જીવન પણ સુખમય અને આનંદમય વ્યતીત થશે. આજના સમયની અંદર આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે માતા પિતાને દીકરાઓ વૃદ્ધાશ્રમમાં મૂકી આવે છે. હવે જે માતા પિતા વૃદ્ધાશ્રમની અંદર છે એના દિલમાંથી કઈ દુઆઓ નીકળી રહી છે? માતા પિતાની તો બહુ શ્રેષ્ઠ અને શુભ ભાવના હોય છે. કારણ કે લોકો એવું કહે છે કે જેમને પિતૃદોષ લાગે છે એમને જીવનમાં ક્યારેય કોઈ કાર્યમાં સફળતા મળતી નથી.
તો પિતૃદોષ એ શું છે? પિતૃદોષનો અર્થ એવો બતાવે છે કે પિતૃદોષ અર્થાત એમના પિતૃઓ એનાથી નારાજ છે. વિચારવાની વાત તો એ છે, પિતૃઓ એટલે આપણા પૂર્વજો, આપણા વડીલો, આપણા માતા પિતાઓ, એ ક્યારેય આપણાથી, પોતાના સંતાનોથી નારાજ હોઈ શકે ખરા? અત્યારના સમયની અંદર ગમે તેવા દીકરાઓ છે, સેવા કરે યા ના કરે, છતાંય માતા પિતાની ભાવનાઓ ક્યારેય દીકરાઓ માટે બદલાતી નથી. તો પછી મૃત્યુ પછી પણ એની ભાવનાઓ ચેન્જ થતી નથી. એ ક્યારેય દીકરાઓને શ્રાપ આપતા નથી, એ ક્યારેય દીકરાઓને દુઃખ આપતા નથી. એટલે પિતૃદોષ ક્યારેય લાગતો નથી. એનો ભાવાર્થ એ છે કે આપણે જ્યારે જીવનમાં ગલત કર્મ કરીએ છીએ તો એ માતા પિતાના આશીર્વાદને આપણે પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. બીજું ઋણ છે જેનું નામ છે દેવઋણ. દેવઋણનો અર્થ એ થાય છે કે ભારતવાસી, દરેક ભારતવાસીના કોઈ ને કોઈ દેવી, કુળદેવી જેને આપણે કહીએ, યા તો કુળદેવતા હોય છે. હવે દરેક દેવી અને દેવતાઓનો હાથ હંમેશા આપવાની નિશાનીમાં બતાવ્યો છે. દેવતા અર્થાત દેવાવાળા, એ કંઈક ને કંઈક આપણને આપી રહ્યા છે. તો આપવાની નિશાની એ શું છે? એ દાનની નિશાની છે. તો ભગવાન આપણને એ પણ સંદેશ આપે છે કે આપણે પણ જ્યારે બીજાને આપતા શીખી જઈશું તો આપણે એ દેવઋણમાંથી મુક્ત થઈ જઈશું. કંઈક ને કંઈક દરેક આત્માને આપીએ. આપણે જે આત્માને જેની જરૂર છે એનું દાન કરીએ. તો દેવઋણમાંથી મુક્ત થવા માટે દાન એ બહુ મહત્ત્વની વસ્તુ છે. ત્રીજું છે ઋષિ ઋણ અર્થાત ગુરુ ઋણ. ગુરુનો અર્થ થાય જે સદજ્ઞાન આપે છે. અને આપણા દરેકનો સદગુરુ એ તો પરમપિતા પરમાત્મા છે, જે સદજ્ઞાન દ્વારા આપણા દરેકની સદગતિ કરે છે. તો સદગતિને પ્રાપ્ત કરવા માટે સૌથી પહેલાં ભગવાન જે જ્ઞાન આપણને આપે છે એ જ્ઞાનને આપણે આપણા જીવનની અંદર ગ્રહણ કરી અને પછી આપણે એ જ્ઞાનને બીજા પાસે અથવા બીજાની સામે એને રાખીશું ત્યારે એ જ્ઞાનનો દરેક લોકો સ્વીકાર કરશે. તો એ જ્ઞાન વહેંચવાથી પરમાત્મા કહેશે તમારી પાસે વધશે. તો જ્ઞાનનું પણ આપણે દાન કરવાનું છે. સાથે સાથે જીવનની અંદર શ્રેષ્ઠ કર્મની કમાણી કરવાની છે. આપણા માતા પિતાની સેવા કરી, માતા પિતાને સંતુષ્ટ રાખી અને જીવનમાં એમના આશીર્વાદ, એમની દુઆઓ અને એમના દ્વારા શુભ અને શ્રેષ્ઠ પ્રેરણાઓ પ્રાપ્ત કરવાની છે. એ શ્રાદ્ધ આપણને શ્રેષ્ઠ સંદેશ આપે છે. અને છેલ્લે સાથે સાથે આપણે દરેક એ પરમાત્મા પિતાની સંતાન છીએ. પરમાત્માની દુઆઓ અને આશીર્વાદ આપણા માટે સદાયના માટે છે. ભગવાન આપણને સદાયના માટે આપી રહ્યા છે, પરંતુ હજી આપણે લેવા માટે લાયક નથી. તો એ લાયકાતને, એ શ્રેષ્ઠ ગુણોને, સદ્ગુણોને, શ્રેષ્ઠ વિચારોને ચોક્કસ આપણા જીવનમાં આપણે ધારણ કરીશું ત્યારે પરમાત્માને પણ આપણે ખુશ કરી શકીશું અને આપણા પૂર્વજોને પણ આપણે ખુશ કરી શકીશું. કારણ કે આપણા પૂર્વજોને કોઈ પણ પ્રકારની સ્થૂલ વસ્તુનું દાન આપણે નહીં કરી શકીએ. તો કયું દાન કરવાનું છે? આપણા શ્રેષ્ઠ વાઇબ્રેશન, શુદ્ધ અને પવિત્ર વાઇબ્રેશન. એ સદગત આત્માઓને બીજું કંઈ પહોંચી શકતું નથી, પણ આપણી શુભ ભાવનાઓ ચોક્કસ એના સુધી પહોંચે છે. તો દરેક પૂર્વજ આત્માઓ, મહેસાણાની ગયેલી દરેક એડવાન્સ પાર્ટીની આત્માઓમાં શ્રેષ્ઠ આત્માઓ, પિલ્લર સમાન આત્માઓ, એ દરેક આત્માઓનું આજે આપણે બધાએ સાચા દિલથી આહ્વાન કરી એ દરેક આત્માઓને શ્રેષ્ઠ ભાવાંજલિ, શ્રેષ્ઠ શ્રદ્ધાંજલિ આપણે અર્પિત કરીશું ભોગની અંદર. અને ભોગનું ખૂબ જ મહત્ત્વ છે. ભક્તિ માર્ગની અંદર તો એ લોકો શ્રાદ્ધની અંદર બ્રાહ્મણોને ખવડાવે છે, યા તો કાગવાશ કરીને કાગડાને શ્રાદ્ધ નાખે છે. પણ વાસ્તવિકતા અહીંયા પરમાત્મા આપણને બતાવે છે કે સાચા અર્થની અંદર એ આત્માઓ સુધી આપણી ભાવનાઓ ક્યારે પહોંચે છે? જ્યારે પરમાત્મા ડાયરેક્ટ એ આત્માઓને ભોગ સ્વીકાર કરાવે છે. તો ભોગનું ખૂબ જ મહત્ત્વ છે. જે ભોગની અંદર પરમાત્માની દિવ્ય શક્તિઓ છે, જે ભોગની અંદર પરમાત્મા ખુદ એ આત્માઓને શક્તિની સાથે સાથે એ આશીર્વાદ આપી રહ્યા છે, તો એવું શુદ્ધ અને પવિત્ર ભોજન એ આત્માઓને પ્રાપ્ત થાય છે. તો આપણા દિલની એવી શ્રેષ્ઠ ભાવના અને શુભ ભાવનાથી એ દરેક પૂર્વજ આત્માઓને આપણે પરમાત્મા એમને ભોગ સ્વીકાર કરાવી રહ્યા છે, પણ આપણી પણ ભાવના એની સાથે જોડાયેલી છે. તો એવા ભાવથી આપણે એને ભોગ સ્વીકાર કરાવીએ છીએ.
એનું ખૂબ જ મહત્ત્વ બતાવવામાં આવ્યું છે. તો એવા શુભ અને શ્રેષ્ઠ સંકલ્પથી આપણે દરેક આત્માઓ શ્રાદ્ધને મનાવી રહ્યા છીએ. ઓમ શાંતિ. ओम शांति. विशेष आज हम सभी अपने पूर्वजों को पुनः पुनः स्मरण करके और उन सभी आत्माओं को विशेष याद करके उन्होंने इस यज्ञ के प्रति या जो भी इस ज्ञान से अनभिज्ञ आत्माएं हैं, इस परमात्मा के ज्ञान से जो आत्माएं दूर रही हुई आत्माएं हैं, ऐसी भी लौकिक आत्माएं, सभी आत्माओं ने जिन्होंने भी अपने परिवार के प्रति या जो ज्ञानी आत्माएं हैं उन्होंने इस यज्ञ के प्रति अपना जो भी बलिदान दिया है, जो भी सेवा करके अपना भाग्य जमा किया है, या जिन अज्ञानी आत्माओं ने अपने परिवार के लिए पूर्णता सहयोग सुखी बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए जो जो उनके हमारे ऊपर ऋण हैं, उन सभी ऋण को हम इन श्राद्ध के दिनों में अपने दिल की भावनाओं के साथ में भावांजलि अर्पित करते हैं. क्योंकि जैसा हमने वर्षा बहन से सुना कि श्राद्ध किस लिए हम मनाते हैं या श्राद्ध क्यों खिलाते हैं. भक्ति मार्ग के अंदर क्या हम भी पहले भक्ति मार्ग में थे या अज्ञान काल में थे, तब हमें भी भले कर्म कांड की विधियों के अनुसार या जो जिस समाज के रीति रस्म रिवाज रहे उनके अनुसार ये सब कार्य करते चले आए. लेकिन आज हमें बाबा ने एक एक ज्ञान का गुह्य राज स्पष्ट करके सुनाया है कि इन सब विधियों के पीछे ब्राह्मणों को खिलाना या फिर पशु पक्षियों को खिलाना, इन सब के पीछे में क्या रहस्य छुपा हुआ है. तो वास्तव में श्राद्ध शब्द का वास्तविक अर्थ है ही श्रद्धांजलि अर्पण करना. और वो श्रद्धांजलि हम श्रद्धा भाव से अर्पण करें, दिल के भाव से अर्पण करें. अब हम सभी जानते हैं कि श्रद्धांजलि किसको दी जाती है? जो इस देह को छोड़ कर के चले गए हैं, जो सदेही नहीं है. भले सदेही नहीं है, लेकिन आज जो कुछ भी उनसे हमें प्राप्त हुआ है, क्योंकि हम उनका अस्तित्व, हमारा अस्तित्व, हमारा जो वजूद है वो किसके कारण से है? वो जो भी हमारी पूर्वज आत्माएं हैं, हमारे जो भी पितृ होकर के गए हैं, उन्हीं की तो बदौलत आज हम इस शरीर के अंदर जी रहे हैं, समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करके जी रहे हैं. क्योंकि मिले हुए उनके जो भी संस्कार हैं, जो भी श्रेष्ठ उन्होंने गुण कर्तव्य हमें सिखाए हैं, उन सभी गुण कर्तव्यों को लेकर के आज हम उनका नाम आगे बढ़ाने के लिए जी रहे हैं. क्योंकि हर कोई परिवार का सदस्य और उस परिवार का जो भी मुखिया होता है या वडील होता है, तो उसकी एक ही इच्छा होती है कि मैं भले सुख पाऊं या ना पाऊं, लेकिन मेरी आने वाली ऐसी अनेक पीढ़ियों सुख प्राप्त करती रहे. और उन सुख प्राप्त करने के लिए वो भले अपने लिए कुछ इकट्ठा करे या ना करे, कुछ उपयोग करे या ना करे, लेकिन बच्चों के लिए हमेशा करते हैं. लेकिन परमात्मा पिता ने तो हमें ये सिद्धांत दिया है, दुनिया में भी इस बात को मानते तो हैं, भले समझ कम हो, कि आने वाला जो भी इस दुनिया के अंदर व्यक्ति जब पैदा होता है तो उसको भी 2 हाथ 2 पैर
और इस कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म करने की संपूर्ण क्षमता परमात्मा प्राप्त करके ही तो भेजते हैं। आज आप अपनी 7 पीढ़ियों के लिए इकट्ठा करके जा रहे हैं, लेकिन आने वाला व्यक्ति जिसको मुंह में 24-32 दांत दिए हैं, तो कम से कम पेट भरने के लिए वो अपनी 2 रोटियां तो कमा सकता है, लेकिन उन्हों का त्याग हमारे प्रति रहता है कि हमारे बच्चे सुखी हों। तो ये विशेष करके जो ये श्राद्ध के दिन होते हैं, क्योंकि जो भाद्रपद मास की पूर्णिमा और उसके बाद अश्विनी मास की अमावस्या तक के लिए बीच के ये जो 16 दिन होते हैं, वही श्राद्ध के विशेष माने जाते हैं। लौकिक रीति से अगर देखें, दुनियावी रीति से अगर देखा जाए, तो कोई भी अच्छा काम या कोई भी शुभ काम की शुरुआत इन श्राद्ध के दिन में नहीं करते हैं। लोग दुनिया में ऐसा समझते हैं कि श्राद्ध के दिन यानी कि वो हमारे काम करने योग्य दिन नहीं है, लेकिन परमात्मा वही बात बताते हैं कि वास्तव में श्राद्ध के दिन माना कि इन दिनों के अंदर आपकी श्रद्धा, आपकी भावनाएं, आपके मन के जो भी संकल्प हैं, वो सारे इन दिनों में ही श्रेष्ठ रहते हैं। बाकी तो आप देखो, जैसे कहा कि नवरात्रि के जब नए दिन की शुरुआत होती है, नवरात्रि अर्थात कोई भी काम जब हम नया शुरू करते हैं, कहा ना कि जैसे जो गणेश विघ्न विनाशक, उसका चतुर्थी का पूर्ण होना, श्राद्ध का शुरू होना, श्राद्ध का पूर्ण होना, नवरात्रि का उदय होना, ये तीनों ही, क्योंकि परमात्मा पिता ने इस कुदरत को बहुत सिस्टमेटिक बनाया है, इतना सुव्यवस्थित बनाकर के इस दुनिया की व्यवस्था को हमें उन्होंने सौंपा। लेकिन आज अगर दुनिया में देखा जाए तो हर व्यक्ति उसको अंधविश्वास मान करके, चाहे कुरीतियों को मान करके, क्या वो इनका भले ही बहिष्कार करते हैं, लेकिन आज दुनिया किस तरफ जा रही है? दुनिया दिन प्रतिदिन पतन की तरफ जा रही है। तो ये सब एक निमित्त है, क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन के अंदर जो भी कुछ प्राप्त करता है, प्राप्त करने का मात्र और मात्र एक ही आधार है, उसके कर्म। और कर्म वो बीज है, जितना बीज शक्तिशाली होता है, उतना ही वृक्ष जो है वो घटाधार और फलदायी होता है। तो हम अपने कर्मों को किस प्रकार से श्रेष्ठ बना सके, किस प्रकार से हम पुण्य का खाता जमा कर सके, ये सारी विधियाँ सुव्यवस्थित रीति से समाज के संचालन के लिए उस सर्वशक्तिवान पिता ने हमें दी हुई है। एक एक के पीछे में हमारे कर्मों के लिए आप देखिए कि कोई भी कार्य की शुरुआत करने से पहले क्या करते हैं? क्या वही ब्राह्मणों को बुला करके विधि कराना, वही शुभ लाभ लिख कर के कार्य को शुरू करना, लेकिन वो कितना आधा घंटे की विधि होगी। उस विधि को करने के बाद में हम शुभ विधि से कार्य की शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन अंत तक हम शुभ 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 ही करते रहे, वो तो नहीं हो पाता है। जैसे मुरली में भी बाबा क्या कहता है कि बच्चे, आपको बाबा को याद करके नहीं, लेकिन याद करते करते याद में खाना है। तो दुनिया वालों ने भी क्या किया, कार्य की शुरुआत जब किसी की भी करेंगे तो क्या करेंगे, आधा घंटे की कोई भी किन्हीं भी श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुला करके अपने इष्ट की मूर्ति को रख करके शुभ कार्य की शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन उसके बाद में क्या होता है, फिर वो भूल जाता है, वो शुभ करना ही भूल जाता है। तो ऐसे ही हम भी क्या करते हैं, हम बाबा को याद करके भोजन तो खाना शुरू करते हैं, लेकिन भोजन खाते समय फिर हम भी तो बाबा को भूल जाते हैं। अच्छा, तो ये श्राद्ध के जो दिन हैं, ये श्राद्ध के दिन भी वही हैं, क्योंकि कई बारी हमारे से जाने या अनजाने वो जो हमारी आत्माएं हैं, पितृ आत्माएं हैं, जिन्होंने हमें ये जीवन दिया है, उनको हमसे कोई दुख प्राप्त हुआ हो,
क्योंकि हम आत्माओं को देते हैं, शरीर को श्राद्ध नहीं खिलाते हैं। लेकिन एक बात अगर देखी जाए कि यहाँ से कोई दूसरे कंट्री के अंदर में कोई व्यक्ति अगर रहता हो और आप बैठे बैठे दूर उसको याद करें और अचानक ही उसका उसी समय कॉल आ जाए, फ़ोन आ जाए, तो उस पर फ़ोन पर बात करने का पहला आपका जो वाक्य होगा क्या होगा? अभी ही आपको याद कर रहा था और आपका कॉल आ गया। यानी जिसको कहते हैं कि टेलीपैथी, टेलीपैथी, हमारे जो भी भावनाएं हैं, हमारे जो भी संकल्प हैं, वो संकल्प उन आत्माओं को पहुँचे। भले वो शरीर के अंदर है, लेकिन है तो आउट ऑफ कंट्री ना। तो दूर बैठ कर के जब हमारे संवेदनाओं को, हमारे संकल्पों को वो व्यक्ति जब कैच कर लेती है, तो आज हमारे बीच से गई हुई जो भी आत्माएं हमें, हमारे परिवार के स्वजन हैं, भले देह में नहीं लेकिन हमारे दिल के अंदर में विराजमान है। हमारे दिल के अंदर उनका सम्माननीय स्थान है और उन सम्माननीय स्थान होने के कारण हम उन आत्माओं को, भले हमारे साथ में जिस शरीर के उनको रहते हुए उन्होंने हमें ये जन्म दिया, या हमारे जो भी दादा हैं, हमारे जो भी नाना हैं, वो उस देह में भले ही ना हो, हम देह को नहीं लेकिन आत्मा को श्राद्ध खिलाते हैं। आत्मा को श्राद्ध खिलाना माना कि अपने वाइब्रेशन, क्योंकि जब हम उन सभी आत्माओं को बाबा के सामने इमर्ज करते हैं और बाबा उन आत्माओं को इमर्ज करके, वो शक्तिशाली हो सकता है कि हमारी पूरी लाइफ के अंदर में ऐसा तो नहीं है कि हमारे से वो हमेशा संतुष्ट ही रहे हो, किसी भी कारण कोई भी छोटी बात या बड़ी बात से हमसे कहाँ ना कहाँ असंतुष्टता आई भी हो, तो हम इन श्राद्ध के दिनों में खूब गहरे अपने दिल की भावनाओं के साथ में उनसे प्रायश्चित करें, उनसे क्षमा याचना मांगे, और क्षमा याचना मांगना यही उनके वरदानों की, कहो कि आशीर्वाद की हमारे ऊपर कृपा हो जाती है। तो कहते हैं ना, पितृदोष जो लगता है, कोई कार्य को सफल नहीं होने देता है, तो वो विघ्न रूप बन जाते हैं। वास्तव में विघ्न रूप नहीं होते हैं, वो विघ्न रूप नहीं होते हैं, लेकिन हमारा जो व्यवहार उनके प्रति कोई भी अगर गलत हो गया है, वो गलत व्यवहार जब तक उन्होंने हमें क्षमा नहीं किया है, तो वो क्षमा न मिलने के कारण वो अड़चन हमारे कार्य के अंदर आती है। तो ये एक विधि है श्राद्ध की कि उन आत्माओं को हम संतुष्ट। अच्छा, कई बारी देखा जाता है कि कई आत्माएं जिनको ये मालूम ही नहीं है कि मुझे जाना है इस दुनिया से, या मुझे इस शरीर को छोड़ना भी है, ऐसे ही बैठे बैठे अचानक एक्सीडेंट हो जाना या फिर हार्ट अटैक आ जाना। अभी उसके तो जाने के न मन में था न चित्त में था, और अचानक बैठे बैठे जो आत्मा चली गई। आप सोचो कि जाते समय या जाने के बाद वो कितना सारा अपने मन के अंदर में भार लेकर के गई होगी कि मुझे मालूम होता तो मैं ये बोलता, या मैं ये कर सकता था, मुझे ये करना था। तो वो सारे जो भी संकल्प हैं, वो संकल्प अपने मन के अंदर लेकर के वो आत्मा साथ में जाती है। तो उन सभी को अचानक एक्सीडेंटल हुई आत्माओं का जाना, उनके साथ में फिर उनको वो श्राद्ध खिलाना, तो ये एक विधि बनाई हुई है कि इन श्राद्ध के दिनों में हम उन सभी आत्माओं का आवाहन करें, और जो भी चाहे हमारे परिवार से हैं, लेकिन बाबा भी कहता है, दुनिया में भी लोग इस बात को मानते हैं कि वसुदेव कुटुंबकम की भावना, कि सारा विश्व ही हमारा तो जो परिवार है। आज भी बाबा ने कहा ना कि हम बाबा के बच्चे हैं, तो हमें विश्व कल्याण की भावना, ये हमारा ध्येय होना चाहिए, ये हमारी स्थिति होनी चाहिए। तो हम भी उन आत्माओं को, सारे विश्व की आत्माओं को, और विशेष करके हमारे अपने जो संबंधी हैं, जो स्वजन हैं, जो हमारी परिचित आत्माएं हैं, उन सभी आत्माओं का खूब खूब दिल से आवाहन करें, और आवाहन करने के बाद खूब दिल की गहराइयों से उनके लिए संवेदनाएं
प्रकट करें कि आप अगर हमसे कोई भी जाने या अनजाने कुछ दुख आपको लगा हो, दुख पहुंचा हो, तो हम बार बार उस बात के लिए आपसे क्षमा याचना मांगते हैं। और आप जहाँ भी हैं, जिस शरीर में भी हैं, जिस परिवार में भी हैं, उस परिवार में रहते हुए, उस शरीर में रहते हुए आप खूब सुखी हों, खूब संपन्न रहें और खूब अपने उस परिवार को और उस घर को सुखी बनाएं। भले हमसे दूर हैं, हमारे से आप दूर शरीर में लेकर के पहुंच गए हैं, तो ऐसा हम आज के दिन, क्योंकि सभी ने अपने परिवारजनों के लिए विशेष भोग के लिए कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन बाबा की सेवा के लिए किया है, तो आप सभी भी बैठ करके इस बात का आवाहन करेंगे कि हम उन आत्माओं को इमर्ज करके बाबा के सामने, कि बाबा इन आत्माओं को भी शक्ति प्रदान करें और आपका भी बने, ये वाइब्रेशन उन आत्माओं तक हम पहुंचाएं, ताकि भले वो दूर हैं, उन आत्माओं की सेवा हो सके। तो विशेष इस ही कार्य के लिए, ये कार्य भी जैसे बाबा ने हमें दिया हुआ है सकाश सेवा का, तो ये भी तो सकाश की सेवा है ना, ये भी तो आत्माओं की एक मनसा सेवा ही है ना। तो उन सभी आत्माओं को विशेष भोग लगाते समय इमर्ज करेंगे और इमर्ज करके जो भी कुछ है उनसे हम क्षमा याचना भी मांगेंगे और अपनी जहाँ हैं उनको सुखी संपन्न रहने के लिए अपनी शुभ भावांजलि भी अर्पित करेंगे। तो विशेष इन श्राद्ध के दिन में इन्हीं बातों का महत्व होता है जो बाबा हमें बताते हैं। तो पुनः पुनः उन सभी यज्ञ की गई हुई जो पिलर आत्माएं हैं, इस मेहसाना सेंटर के पिलर आत्माएं हैं, परिवार से जो भी हमारे से दूर सेवा अर्थ गई हुई आत्माएं हैं, उन सभी को हम पुनः पुनः दिल की श्रद्धांजलि और भाव अर्पित करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। सर्वशक्तिवान बाबा के सानिध्य में अपनी पूर्वज आत्माओं की स्मृति में आज की इस विशेष संध्या में हम सभी भाई बहनें एकत्रित हुए हैं। हमने अपनी दोनों बहनों के द्वारा श्राद्ध के महत्व को समझा, भाव को समझा, क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं जो भी यादगार कर्म यादगार चल रहे हैं वो सब संगम पर ब्राह्मणों ने प्रैक्टिकल में कर्म किए हैं। हमारे किए हुए कर्मों का यादगार जो द्वापर युग से चल रहा है, आज भी जो विशेष हमारे इस यज्ञ के वो आत्माएं जिन्होंने अपने जीवन में शुरू से लेकर अंत तक बाबा के वफादार रहे, यज्ञ के वफादार रहे, हम और आप जैसे अनेक आत्माओं को वो बाबा का दिव्य संदेश दे करके जिनके जीवन को दिव्य, ऊंच और पवित्र बनाया, वो थे हमारे पूर्वज। उन पूर्वजों ने अपने एक एक संकल्प, श्वास, समय सभी को सेवा में समर्पित किया। जो अभी हम सुन रहे थे कि पितृ ऋण जो है वो सेवा भाव से चुकतू होता है, तो बाबा ने संगम पर इन आत्माओं को निमित्त बना करके
जो हमारी पालना की और योग्य बनाया, तो हमें सेवा का रिटर्न दे करके उन आत्माओं का जो ऋण है उसे चुकता करना है। लौकिक में अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, जो भी हमारे संबंधी हैं, ये 16 दिन में हर रोज़ कोई ना कोई का श्राद्ध मनाते हैं। आज भी मैं किसको फ़ोन किया तो कहा आज हमारे यहाँ श्राद्ध था, और उन्हें अपनी वो दिल की भावनाएं पहुंचाते हैं विशेष भोजन के रूप में। तो हमें सेवा का ऋण चुकता करना है, और सेवा का ऋण वहाँ लौकिक दुनिया में जो बच्चे होते हैं, कोई हॉस्पिटल खोलता है, कोई स्कूल खोलता है, कोई धर्मशाला खोलते हैं, और उसके ऊपर में नाम लिखा होता है अपने माता पिता के स्मरण अर्थ। इसको कहते हैं सेवा का के द्वारा हमने उनके ऋण को चुकता किया। करता बच्चा है, हॉस्पिटल स्कूल बच्चे ने खोला, लेकिन उसका जो पुण्य है, जो उसकी भावनाएं हैं, जो हमारे गए हुए पितृ हैं, स्कूल खोला उनको एजुकेशन अच्छा मिलेगा, किसने हॉस्पिटल खोला वो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो उन तक वो हमारी श्रेष्ठ भावनाएं पहुंचती हैं। वो हमारा सेवा का ऋण हुआ। और सेवा के ऋण के साथ में जो दूसरा ऋण कहा, वो ऋण दान के द्वारा हम चुकता करते हैं। जब अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं और उस दान से उनकी जीवन बनती है, तो वो है दान के द्वारा देव ऋण को चुकता करना। हर एक की अपनी कोई ना कोई कुल देवी है। आप सब में से अपने घर की हर एक कहता है ये हमारी कुल देवी है। कोई भी शुभ काम करेंगे तो पहले कुल देवी को याद करेंगे, उसकी पूजा करेंगे, नहीं तो कुल देवी नाराज हो जाएंगी। तो पहले उसको याद करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो कुल देवी कौन है? ज्ञान की दृष्टि से अगर हम देखें तो कुल देवियाँ कौन है? हम हैं। क्या हमारे जो आदि रतन हैं और हम हैं। कोई किसी का कुल देव है, कोई किसी की कुल देवी है। तो बाबा हमें ये कह रहे हैं कि हम अपने दिल की वो श्रेष्ठ भावनाएं अगर किसी भी प्रकार से, चाहे स्वभाव संस्कार के वश, हिसाब किताब के वश, उन आत्माओं को हमारे से दुख मिला है, वो दुख के कारण से बार बार बैठे बैठे स्मृति कई बार आती है, कई सुनाते हैं, मैंने अपनी मम्मी को ऐसे कहा था, मैंने अपने फादर के साथ ऐसा किया, अगर ऐसा नहीं किया होता तो उनको ये होता। वो स्मृतियाँ हमें दुख देती हैं। और विशेष ये जो कहते हैं कि ये पितृ ऋण जो अविघ्न रूप बनते हैं, वो है एक नेगेटिव एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी हमें डिस्टर्ब कर रही है। तो बाबा ने हमें ये सिखाया है, हम उन आत्माओं को इमर्ज करके वो पॉजिटिव थॉट इतना अच्छा अपना ऑरा बनाए, दिल से उनसे क्षमा याचना ले, ताकि वो जो नेगेटिविटी है वो उनके दिल से, जैसे स्थूल में भी सामने लौकिक में क्षमा मांगने से पहली बात भूल जाते हैं और फिर से हमारा जैसे प्यार जैसा संबंध होता है वैसे संबंध जुटता है। तो हम भी
आज के दिन विशेष जब बाबा को अभी भोग लगाएंगे, हर एक अपने उन पितरों के प्रति ये एक श्रेष्ठ संकल्प करेंगे। अगर कुछ स्मृतियों में पड़ा हुआ है तो उस स्मृति को भी इमर्ज करेंगे कि मैंने ये भूल की जिसके कारण से आपको ये दुख हुआ होगा, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगती हूँ। अथवा स्मृतियाँ नहीं हैं तो भी बहुत दिल की श्रेष्ठ और ऊंची भावनाओं से, और हम ब्राह्मणों के अंदर में वो कला है, बाबा ने हमको वो सिखाया है कि अपनी आत्मिक स्वरूप की स्थिति में स्थित होकर के जब उन आत्माओं को इमर्ज करते हैं और वो पॉजिटिव ऊर्जा उन तक पहुंचाते हैं, अपने स्नेह के भाव उन तक पहुंचाते हैं, श्रद्धा के भाव उन तक पहुंचाते हैं, तो जो भी हमारा पुराना ऋण है वो ऋण चुक्त होता है और फिर से हमारे संबंधों में, देह तो है नहीं जो हमारा उनके साथ स्थूल में संबंध हो, लेकिन विचारों से वो खत्म हो जाता है जिसको हम विघ्न कहते हैं, और हम सुखी अच्छी रीति से हर कार्य को कर सकते हैं। आजकल समय के अनुसार उस देवी को बुलाना, उस पितृ को बुलाना, उनकी इच्छाओं को पूछना, फिर वो बोलते हैं कि इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, इसके कारण से मैं ऐसे इनको दुख दे रही हूँ, या उनके घर के अंदर में ये विघ्न आ रहे हैं। ये एक लौकिक की विधि हुई, लेकिन सबसे श्रेष्ठ विधि है हम अपने मन को बाबा को समर्पित करके और बाबा की सर्व शक्तियाँ लेकर के उन आत्माओं से दिल से क्षमा मांगेंगे और अपना पुराना हिसाब किताब, भले वो आत्माएं अभी नए जन्म में हैं, कोई बच्चा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई कहाँ पर होगा, लेकिन ये जो सूक्ष्म हिसाब किताब, जैसे बाबा कहता है 63 जन्मों का हिसाब किताब है, तो उन आत्माओं के साथ का हिसाब किताब भी हमें विघ्न रूप बनता है। मैं पता नहीं कहाँ सुना था या क्या था, तो उसको ये कहा कि कोई बीमारी थी, बहुत डॉक्टर को बताने के बाद भी वो बीमारी उसकी ठीक नहीं होती थी, लेकिन जिस आत्मा के साथ हिसाब किताब था उसको वाइब्रेशंस दिए, क्षमा मांगी, उसके बाद में उसका वो रोग ठीक हो गया। तो ये शरीर पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, मन पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण से अभी भी हम जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। इसलिए लौकिक में उसको कहते हैं कि ये पितृ का विघ्न है। तो हम बाबा के ज्ञानी तू आत्मा बच्चे मन से उन आत्माओं से क्षमा लेंगे। बाकी मुझे ये याद आ रहा था, आज मैसाना सेवा केंद्र को 50 वर्ष अभी पूरे होने जा रहे हैं। तो सबसे पहले वो हमारी पूर्वज आत्माएं जिन्होंने यहाँ ये ज्ञान का बीज डाला। ऐसे सेवा केंद्र की स्थापना 1973 में हुई, लेकिन इससे भी पहले साकार बाबा ने यहाँ पर 2 बहनों को भेजा था, हिस्ट्री जो है, और वो 2 बहनें ऐसे तो सीतपुर का कोई ब्राह्मण था, वो माउंट आबू गए और उनको ज्ञान सुनाया, उनको अच्छा लगा और उन्होंने बाबा से डिमांड किया कि आप हमारे यहाँ बहनों को भेजो। तो बाबा ने 2 बहनों को भेजा, लेकिन वो उन्होंने बहनों को ला कर के रखा, लेकिन वो भाई फिर वापस आया नहीं। तो वो दोनों बहनें बिना खाना खाए पिए बाबा की याद में बैठे रहे, ना किसी से पहचान थी, ना किसी से मिलना जुलना था। उस टाइम पर ये मोबाइल तो था नहीं,
फटाफट फ़ोन किया और पहुंच जाओ। फिर बाबा ने किसी को साक्षात्कार कराया, कहते वो मैसाना का व्यापारी था। और फिर ये हिस्ट्री है, एग्जैक्ट मुझे बिल्कुल क्लियर याद नहीं है, लेकिन इस प्रकार की ये घटना घटी थी। फिर वो दो बहनें यहाँ पर आईं, यहाँ उन्होंने उससे सेवाएं ली बहनों से, और बहनों ने सेवाएं की, ये बीज डाला। लेकिन वो दो बहनें जो थीं, भाषा उनकी सिंधी थी। ये मुझे इसलिए याद आता है कि मैं एक बार दादी ऑलराउंडर, उसने मुझे सुनाया था। दादी बोली तुम तो अभी मैसाना गई है, क्योंकि मैं दिल्ली में दादी ऑलराउंडर के साथ में थी, पर हमने तो मैसाना में पहले सेवा की थी। तो बोली मेरे को बाबा ने भेजा, वो जो दो बहनें रहती थी सिंधी में बात करती थी, तो किसी को ऐसे लगा कि ये दोनों बहनें लड़ती बहुत हैं, तो बाबा को कंप्लेन किया कि ये झगड़ती हैं दोनों बहनें। तब बाबा ने दादी ऑलराउंडर को यहाँ भेजा था, और दादी ने आकर के देखा तो झगड़ने की तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन सार ये निकला कि वो भाषा का प्रॉब्लम था, जिसके कारण से उन लोगों को लगता था। लेकिन उस समय पर बीज पड़ा, वो बीज धीरे 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 जमीन में पड़ा हुआ बीज कभी भी उगे नहीं, ऐसा होता नहीं है। वो भी धरती माँ बीज को उगाती है। ऐसे ही ये भी आध्यात्म का बीज 1973 में फिर से उगा, जागृत हुआ, और उसको जागृत करने के निमित्त बनी हमारी महादेव नगर सेवा केंद्र की ब्रह्मा कुमारी चंद्रिका बहन। उन्होंने यहाँ पर ये बीज डाला। तो सबसे पहले जब प्रदर्शनी करनी थी डेयरी में, डॉक्टर दवे करके एक डॉक्टर थे इस दूध सागर डेयरी में, उनके साथ किसी का कांटेक्ट था। तब फिर चंद्रिका बहन ने डॉक्टर दवे को कहा कि हमको उद्घाटन के लिए कोई व्यक्ति चाहिए जिससे हम उद्घाटन कराएं। तब डॉक्टर दवे ने डॉक्टर कांति भाई का नाम दिया। डॉक्टर कांति भाई को कौन कौन पहचानते हैं? के.एफ. पटेल, शांति भाई के लौकिक में बड़े भाई, हाँ कौन कौन पहचानते हैं? अच्छा, कांति भाई ने उस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद यहाँ शिविर चला, और फिर काफ़ी भाई बहनें निकले जिन्होंने शिविर में लाभ लिया। नारायण भाई, बबल भाई, शंकर भाई, फिर नवीन भाई यहाँ से ही बाबा के बच्चे निकले, और अभी उनका बाद में ट्रांसफ़र गांधीनगर हुआ, और अभी भिवाड़ी में सेंटर पर अपनी बेटी के साथ में वहाँ पर हैं। तो नवीन भाई थे, उसके साथ में ही थोड़ा दिन में शायद जगमाल भाई, मानसिंह भाई, इन सब का जन्म हुआ। और इन सब ने ये संकल्प किया कि हमें मैसाना में स्थायी सेवा केंद्र चाहिए। तो स्टेशन पर उन दिनों में दादियों का जब बॉम्बे आना जाना होता था, तब फ्लाइट और ये कार तो थी नहीं, ट्रेन से जाते थे। और स्टेशन पर ये सारा ग्रुप इकट्ठे होकर के, एक कांति भाई कंसारा भी थे जो उस समय पर इंजीनियर थे और यहाँ रेगुलर आते थे, सब दादी को मिलने के लिए गए और ये रिक्वेस्ट किया कि यहाँ पर हमें सेवा केंद्र चाहिए। तब यहाँ परमिशन मिली और बाबा का ये घर खुला। वो जो बाबा के आदि रतन, उसमें से अभी कुछ बाबा के बच्चे, नवीन भाई जो मैसाना के शुरू के थे वो भी हैं, शंकर भाई हैं, जगमाल भाई हैं, इन सब का उस समय से लेकर के आज दिन तक संपूर्ण मन से भी इतना सहयोग है। तन तो अभी सभी के वृद्ध हो चुके हैं, लेकिन फिर भी बाबा के कार्य में जो एक स्टूडेंट लाइफ का आनंद लिया, आज दिन तक उनको अपनी स्टूडेंट लाइफ नहीं भूली है। शंकर भाई को भी हम सब ने देखा, एक बाबा एक ही लगन थी, अभी अहमदाबाद में हैं। जगमाल भाई को भी हम देखते हैं,
उस दिन इतनी बरसात थी, क्लास में आने वालों की संख्या कम थी, लेकिन जगमाल भाई सेंटर पर ज़रूर पहुँचे। अच्छा, ये इन्हों के आदि के संस्कार हैं। उस समय की जो हमारी पूर्वज आत्माएँ, डॉक्टर कांति भाई, फिर बाद में शांति भाई, जोईताराम भाई, नाथालाल कंसारा, प्रहलाद भाई, बहुत सारी आत्माएं जिन्होंने इस बाबा के यज्ञ को समृद्ध बनाया और सेवाओं को आगे बढ़ाया। नारायण भाई, जो अभी थोड़ा दिन पहले ही हमारे से उस आत्मा ने विदाई ली है, इन सब का बहुत ऋण है। ये बाबा के मैसाना के वो रतन जिन्होंने बीज डाला, वो पूर्वज हमारी दादियाँ थीं। उसके बाद यहाँ जो शुरू किया, तब ये सारे भाई बहनें, उसमें शांति भाई, मधु बहन, फिर प्रहलाद भाई, सीता बहन, ये भी युगल थे, बबल भाई, नारायण भाई, इन सब की युगल, अपनी भगवती बहन, विनोदा बहन जो नवीन भाई की युगल थी। ये माताओं का भी उस समय का ग्रुप जो था, विनोदा बहन, भगवती बहन, एक हमारे जो आज सुबह में याद किया हमने देसाई भाई, तो उनकी तारा बहन, और जोईताराम भाई थे, लीला बहन, इन सब का संगठन बहुत अच्छा था, जिन्होंने शुरू में, और जगमाल भाई की लौकिक मदर नाथीवा, तरेटी की बात ये, हाँ, मैसाना की थी काशीवा। क्या जब यहाँ सेंटर खुला तो शंकर भाई के साथ में काशीबा भी थी। काशीबा का सारा परिवार अभी ज्ञान में चल रहा है, ये लोग सूरत में हैं। और मैं जब मैसाना आई थी तो सबसे पहले मुझे मैसाना के ये 2 विशेष रतन, जब मैं गाड़ी से उतरी, चंद्रिका बहन मुझे यहाँ छोड़ करके गई थी, तो काशीबा मिली थी। अच्छा, और काशीबा विडो थी, तो यहाँ शायद वो बाल निकाल देते हैं ना बूढ़े उसका, तो उसने बाल निकाले हुए थे, ब्लू साड़ी पहनी हुई थी। जैसे मैं गाड़ी से उतरी तो ऐसे ऐसे उसने गीत गाना शुरू किया। क्या गाया गुजराती में वो तो पता नहीं है। मैंने खुश थी कि यह हम बाबा ने हमारे पास में एक हैंड भेजा। ऐसे ही शंकर भाई आया, तो शंकर भाई ऐसे दोनों हाथ से टोपी पकड़ता पकड़ता कहता है, बात करी कुछ, तो मेरे को तो जवाब देना आता नहीं था, पता नहीं क्या बोल रहा है। तो मैंने हिंदी में कुछ बोला, कहता है बहन जी हमको हिंदी बोलना नहीं फाता है। समझा? ठीक है, नहीं फाता है। मैं जब मधुबन से निकली तो मुझे सब ने बोला था तुम मैसाना नहीं जाना, मैसाना गांव है, तुमको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मैंने कहा कि मुझे दादी ने कहा है, मैं ज़रूर जाऊंगी। और ये मेरे जीवन का एक धारणा है, संकल्प है। जो भी मुझे दादियाँ कहेंगी वो मुझे करना है, उसमें मेरा कल्याण है, मुझे अच्छा लगे या न लगे। तो जैसे ही गाड़ी से उतरी, पहले वहाँ सुना कि मैसाना में ऐसा है, और उतरते ही ये दोनों आत्माएं उसी क्वालिटी की मिली। वो कहे फाता नहीं है, और वो गुजराती में एक सुगीत गाए, आम बोले आम करे। क्या ये आदि की हिस्ट्री है। और उस आदि के समय पर बाबा के घर में ये जो रतन निकले थे, इन सब की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। अच्छा, लेकिन फिर भी अपने उस थोड़ी सी इनकम में से भी सब ने यज्ञ को बचत करके चलाया। सेंटर के अंदर केवल एल्यूमिनियम की 4 थालियां थी, 4 कटोरी थी और ग्लास था एल्यूमिनियम का, और 4 प्लेट कांच की और 4 ग्लास ये हमारे बर्तन थे। अच्छा, और एक ऐसा उस समय का, उसको कुकर कह सकते हो, ये प्रेशर कुकर नहीं था, वो पीतल का था, उसमें छेद था, नीचे में पानी भरते थे, ऊपर में रखते थे, उसके ऊपर रखते थे, वो हमारा कुकर था। लेकिन इन सब ने
इनकी आर्थिक घर की परिस्थिति भी ऐसे ही थी। उसमें से धन निकाला और तन का सहयोग दिया और मन का सहयोग दिया। इतनी अच्छी भट्ठियाँ करते थे, ना पंखा था, ना नीचे में फोम का गद्दा था, बहुत पतली सी एक चादर जो नीचे बिछा करके बैठते थे। लेकिन बैठते ऐसा थे, 1 घंटा 1.5 घंटा कोई भी जैसे इस दुनिया में नहीं है। इतना डिटैच और इतनी पावरफुल स्थिति होती थी। सब यहाँ से बाबा के पास वतन में बैठे हुए हैं। शाम के समय पर जो कमरा था, सारा दोपहर तपे, ऊपर में खुला छत थी, छोटा सा कमरा, इतना नज़दीक करके बैठते थे। लास्ट में जो संदली के पास बैठा होता था उसको ऐसे देखना पड़ता था। बहुत छोटा सा कमरा था, उसमें भट्ठियाँ की। और योग के बाद जब पूरा करे, जब पूरा हो, एक एक अगर अपने उसको जब्बे को निचोड़े तो उसमें से पानी निकलता था। लेकिन किसी को किसी परिस्थिति ने मन को डिस्टर्ब नहीं किया। इतनी लगन और इतनी उमंग था सबके मन का, इन पूर्वज आत्माओं का सहयोग। कई बार हमने अमृत वेले सुबह का योग रखा, 4 बजे के बाद हम गेट बंद कर देते थे। आप देखो 3:30 बजे से लेकर के ऐसे दौड़ते आते थे। राम जी मंदिर पर आप खड़े होकर के देखो, और उस समय किसी के पास में कार थी, सिर्फ एक डॉक्टर कांति भाई के पास में, शांति भाई के पास जीप थी, बाकी सब के पास साइकिल थी। स्कूटर किसी के पास नहीं था, चाहे वो नारायण भाई हो, चाहे बबल भाई हो, या नवीन भाई हो, कोई भी हो। और ये देसाई भाई, डेरी से लेकर के परा में जो हमारा 3G रोड में सेंटर था, नवापरा में था, वहाँ तक वो चल करके आता था। और क्या नशे से मालूम आ करके कहता था, अरे बेन मने तो केवी मजा आवे, डेरीमांथी નીકળું એટલે વોચમેન મને સ્લ્યુટ મારે, મને એમ લાગે આ રાજા ચાલ્યા, અને હું ત્યાંથી અહીં સુધી આવું। એટલે એક મુરલી ચલી હતી, લાઇટ માઇટ ડિવાઇન ઇનસાઇડ, તો કે હું તો કેમ ચાલું, લાઇટ માઇટ ડિવાઇન ઇનસાઇડ, લાઇટ માઇટ ડિવાઇન ઇનસાઇડ, કે ક્યારે સેન્ટર આવી જાય મને ખબર જ નથી પડતી। आज अगर आपको कहा जाए डेरी से परा में चल करके आना है, तो और एज थी, यंग नहीं था देसाई भाई, ताराबेन भी एज ओल्ड एज थी। ये है इन पूर्वजों का सहयोग, जिन्होंने खुद घर में दूध नहीं पिया लेकिन हम बहनों को पिलाया। कोई सेवा में अपने घर में सुविधा से नहीं लाए, पहले साधन, सेवा में सफल किया। ये पूर्वज थे। इन पूर्वजों की बदौलत आज हम इस पीस पैलेस और गॉडली पैलेस में बैठे हैं। जो बाबा के लिए त्याग था, समर्पण भाव था, उसने इस मैसाना के फाउंडेशन को इतना मजबूत बनाया है। हर एक पूर्वज जो भी गया है, मैं बैठे बैठे ये 3-4 दिन से जब से ये श्राद्ध शुरू हुए, हर रोज शाम को इन पूर्वज आत्माओं को याद करते हूँ। इनकी बदौलत आज हम इस स्थान पर हैं। जैसे वो कहते हैं ना, भाई अपने लौकिक माँ बाप के कारण, इनके कारण हम यहाँ हैं, तो ये सारी जो फलश्रुति है, जो सिद्धियाँ हैं, ये सब इनको समर्पण है। नारायण भाई 4 बजे डेयरी में ड्यूटी पूरी की,
सेंटर पर आया, हम लोग रात को निकल गए, वहाँ पर ही सेवा की। 12 बजे आ रहे हैं, 1 बजे आ रहे हैं, लेकिन विशेषता ये थी कभी भी किसी ने रात को 12 बजे वापस आने के बाद भी सुबह का मुरली क्लास कभी मिस नहीं किया। केवल मुरली नहीं, ये अभी हमारा नियम लूज हुआ है, हमने किया है अपनी शक्ति कम होने के कारण, लेकिन इन आत्माओं ने 5 माना 5, योग माना योग, 5:30 बजे जाना, ये इसको क्लास नहीं कहा जाता है, ये इन्हों की विशेषता थी। अच्छा, और 1-2 नहीं, जितने आने वाले थे सबका ये मैसाना का एक रिकॉर्ड था, है, अभी परसेंटेज कम हुआ कि रेगुलर तो थे, रेगुलरिटी के साथ पंक्चुअलिटी थी। पंक्चुअलिटी के ऊपर सबका विशेष अटेंशन था। उसके कारण इतना अच्छा संगठन में ये वातावरण बना। तो बाबा ने इन सब के द्वारा ये सेवाएं कराई हैं, तब साधन मिले हैं। मुझे याद है एक बारी मान सिंह भाई यहाँ तावड़िया में, उसका कोई समाज इकट्ठा हुआ और उसमें प्रवचन करना था। हम 2 बहनें थे, 2 में से एक जड़ी बहन थी जो जड़ थी, ना भाषा मैं उसकी समझती थी ना वो मेरी समझती थी। वो गांव की गुजराती बोले और मैं प्योर यूपी की हिंदी बोलो, दोनों का ना मैच हो, भाषा में मैच नहीं होता था। तो वहाँ भाषण करना था। मान सिंह भाई बोले आपको चलना है। मैंने उसको बोला मैं चलने के लिए तैयार हूँ, मेरे को फीवर था, मैं चल कर के नहीं जा सकती हूँ तावड़िया तक। ऐसे तो ये कौन सा है अपना तरेटी, वहाँ हम लोग हमेशा पैदल जाते थे, लाखोड़ पैदल आते थे, तो बड़ा तावड़िया भी दूर नहीं है। लेकिन मैंने कहा बुखार है, मैं चल नहीं सकती हूँ। उसने भी बहुत ट्राई किया, जीप वाले को पूछा, इनको पूछा, बोला रात को हम वापस नहीं आएंगे, क्योंकि रात को 11 साढ़े 11 बजने वाला था और ठंडी के दिन थे। और मान सिंह भैया ऐसा पीछे कि नहीं तुमको चलना है। जाते हुए तो बस में चले गए, लेकिन रात को वापस आने के लिए ऊंट लारी में बैठ कर के मैं आई थी। उसने एक गोदड़ा बिछा दिया, शॉल पहना, स्वेटर पहना, कान बांधे और ऐसे बैठे हुए और वहाँ भाषण किया था। ये सिचुएशन थी। ऐसे जितने सेंटर खुले वहाँ पर भी यही थी। बाबा ने वो सेवाएं कराई उन पूर्वज आत्माओं को, ये मैसाना के पूर्वज थे। ऐसे ही पाटन में भी सेवाएं हुई। सबसे पहले जब वहाँ सेवा की तो वहाँ का पहला रतन वो धनजी भाई निकले थे, और धनजी भाई, उसके बाद हरीश भाई, ये दोनों प्रोफेसर्स की जोड़ी थी। और तीसरे थे गिरधर भाई, ये त्रिमूर्ति थी। धनजी भाई, हरीश भाई, गिरधर भाई, और तीनों ही युगल सहित थे। उसके बाद जब यहाँ भारतीय सोसाइटी में सेंटर खुला तब हमारे शिवा भाई निकले। तो पाटन के ये 4 पिलर थे। इन्होंने भी रात दिन बहुत अथक सेवाएं दी हैं। चल कर के जाना, रात्रि में एक दिन दोपहर के टाइम कहाँ सेवा में जाना था, मैं, हरीश भाई, धनजी भाई, हम लोग खड़े हुए थे संडेर गांव में धूप में। वहाँ से मणुंदाना था तो खड़े रहे, अभी बस आएगी तब आएंगी, फिर बस नहीं आई तो वहाँ से भी एक ऊँट लारी पास हुई। तो सबके पास में जो नैपकिन था, टॉवल था, उसको पानी में भिगोया, गीला किया, सिर पर डाला और ऐसे बैठे और फिर वहाँ से मणुन जा कर के सेवा करके आए। तो इन सब पूर्वजों ने बहुत कुछ त्याग और बलिदान किया है। हम उन सभी पूर्वज आत्माओं की, उत्तर गुजरात के और भी सेवा केंद्र, और भी हमारे भाई ऊंचा के कांति भाई, हरगोविंद भाई, हीरा भाई, माना बहुत पूर्वज आत्माएं हैं। तो आज उन सभी आत्माओं को
हम दिल से याद करेंगे और आप सब जो भी हैं, आपके लौकिक संबंधी जिनके निमित्त भोग का संकल्प किया है और भी जो आपको स्मृति में आए, उन सब को दिल से सूक्ष्म वतन में जा कर के बाप दादा के साथ बैठ कर के हम इमर्ज करेंगे। हमसे भूल हुई है तो सॉरी लेंगे और हमने अगर उनको नहीं क्षमा किया है तो उनको क्षमा देंगे। ये बहुत गहरा एक सूक्ष्म हिसाब किताब चुकतू करने का साधन है। इसीलिए इसको नाम दिया है श्राद्ध, जिसमें श्रद्धा है। शरीर छोड़ने के बाद भी श्रद्धांजलि कहते हैं, इसको भी श्राद्ध कहते हैं, क्योंकि इनमें स्थूल विधि भले करते हैं, लेकिन श्राद्ध श्रद्धा ये भावना है। भावनाएं सूक्ष्म है, मन में है, तो मन में ही कमज़ोरी आती है, मन में ही नेगेटिविटी आती है और उस मन की नेगेटिविटी के कारण से ही मन पर, तन पर, वातावरण पर प्रभाव पड़ता है, जिसको हम कहते हैं, गुजराती में कहे छे पितृ नड़े छे। अच्छा, तो मन को इतना सशक्त बना करके उन्हों को मनसा से दान देंगे, श्राद्ध खिलाएंगे, बाबा के यज्ञ का ये पवित्र भोजन उनको ऑफर करेंगे, क्योंकि इस भोजन में भी ताकत है, जिसको भगवान ने स्वीकार किया, जिसमें सर्व शक्तियाँ आई। वो पवित्र भोजन भी अगर किसी में खाने की कोई वासना या इच्छा रह गई है तो उनकी वो इच्छाएं भी इस भोजन से पूर्ण होंगी। तो आज हम सब अपने उन महसाना के, उत्तर गुजरात के और यज्ञ के उन आदि रत्नों को, जिन्होंने इस विद्यालय को इस ऊंचाइयों तक लाने में अपना संपूर्ण बलिदान और सहयोग दिया है, त्याग किया है। और महसाना ये वो भूमि है जिसने इन सभी बहुत सारे आदि रत्नों की पालना ली है, क्योंकि ये रास्ते में स्थान था। हमारी बहुत सारी दादियाँ जिन्होंने यहाँ पर आकर के अपने वाइब्रेशंस का हमें सहयोग दिया है, अन्य कई प्रकार का सहयोग उन दादियों का रहा है। कितनी दादियों के नाम लें जो उस समय पर थी, इधर से पास होते हुए हमारी दादियाँ, जो ये मुख्य दादियाँ हैं, दादी गुलजार भी यहाँ आकर के खूब रही हैं, माना आते जाते भोजन किया है। बड़ी दादी, बड़ी दीदी, जब बड़ी दीदी थी तब पीस पैलेस नहीं था, तो सब शांति भाई के घर पर रुकते थे, वहीं उनका नाना धोना, भोजन करना, नाश्ता करना, ये सारे प्रोग्राम चलते थे। फिर हमारी दादी ब्रिजिंद्रा, मनोहर दादी, शांतामणि दादी, इन सब ने तो यहाँ बाद में भी जो हमारे कार्यक्रम हुए हैं उसमें आकर के रहे और सहयोग दिया है। उन सभी दादियों को, पूर्वज आत्माओं को हम आज दिल से याद करते हैं और उनके सहयोग के लिए, जिन्होंने हमें इतना बल दिया है और महसाना के फाउंडेशन को मजबूत बनाया, जिसके कारण अभी तक भी इन पूर्वज आत्माओं के बल पर उस फल को आप लोग खा रहे हो। तो हम साथ ही साथ ये भी एक प्रेरणा लेंगे, उन आदि रत्नों ने, मैं महसाना की बात कर रही हूँ, महसाना के इन आदि रत्नों ने जो त्याग किया है, जो उन्होंने जीवन की धारणाएं, नियम और मर्यादाएं इतने चुस्त रहे हैं, जिसके कारण से ये फाउंडेशन मजबूत है। कभी किसी दिन इन आत्माओं ने ये नहीं कहा कि हम लौकिक में रहते हैं तो हमारे परिवार वालों का क्या होगा, हम भोजन नहीं खाएंगे तो क्या होगा, किसी भी नियम मर्यादा को नहीं तोड़ा। ऐसे ही एक विशेष आत्मा गोवर्धन भाई, वो मुझे याद आए अभी,
गोवर्धन भाई ने भी बहुत बहुत सेवा की है इस यज्ञ की, मैसाना की। शुरू में वो भी दूध सागर डेयरी में सर्विस करते थे और हर प्रकार से उन्होंने अपनी विशेषताओं को सेवा में अर्पण किया है। तो हम जो हमारे पूर्वज हैं उन पूर्वजों का अनुकरण करेंगे, अपनी जो कमज़ोरियां हैं उन कमज़ोरियों को अर्पण करेंगे और उनके प्रति वो श्रेष्ठ भावनाएं लेकर के शक्तिशाली बन कर के आगे बढ़ते रहेंगे। वहाँ तर्पण करते हैं, यहाँ हम अपनी दिल की उन श्रेष्ठ भावनाओं को अर्पण करते हैं, क्षमा याचना करते हैं, जिससे वो आत्माएं बंधन में जो बंधी हैं वो मुक्त हो जाती हैं। हम सब भी मुक्त हो कर के निराधार और निराकार बन कर के वापस अपने घर चलेंगे। ठीक है, तो अभी सभी बाबा की याद में बैठेंगे। आज की हमारी याद का स्वरूप, जिसमें हम क्षमा योग करेंगे। अपने भ्रकुटी आसन पर विराजमान होते हुए मालिक बन करके मन और बुद्धि को डायरेक्शन देंगे कि मेरा अपना जो सूक्ष्म संपूर्ण स्वरूप है उसे इमर्ज करेंगे। मैं आत्मा इस भौतिक शरीर को छोड़ उस चमकीली ड्रेस को धारण कर साकारी वतन से पार आकारी सूक्ष्म वतन में, जहाँ पर बाप दादा और उनके साथ साथ अनेक फरिश्ते जो अपनी शुभ, श्रेष्ठ और समर्थ वृत्ति के द्वारा वायुमंडल को शक्तिशाली बना रहे हैं। तो बाप दादा को देखेंगे, बाप दादा के साथ फरिश्ते, मैं भी फरिश्ता और अन्य वतन में फरिश्ते हैं। फिर बाप दादा से शक्तिशाली दृष्टि लेते हुए बाबा के बाजू में बैठ करके हम अपने सभी पूर्वजों का आवाहन करेंगे। और अपने दिल की श्रेष्ठ, शुभ और कल्याणकारी वृत्ति से क्षमा मांगेंगे। यज्ञ के वो आदि रतन भले इन आँखों ने उनको ना देखा हो, परंतु
वो हमारे पूर्वज हैं। हम उसी ईश्वरीय परिवार के हैं। महसूस करें वतन में ये सभी पूर्वज उपस्थित हैं। दिल में उनके प्रति कृतज्ञता का भाव आपकी त्याग तपस्या की बदौलत आपकी श्रेष्ठ ईश्वरीय सेवा की बदौलत हम अपने इस जीवन को श्रेष्ठ बना सके हैं। दिल से शुक्रिया करें। आपने हमें इन ईश्वरीय आदर्शों पर चलना सिखाया। आपने ही परमात्मा प्यार और पढ़ाई का अनुभव कराया। ओ हमारी सर्व मीठी दादियाँ, दीदियाँ, हमारे दादाएं, हम आपको भावांजलि अर्पण करते हैं। साथ ही साथ मैसाना सेवा केंद्र के आदि रतन
जिन्होंने तन मन धन समय शक्ति का सहयोग दिया, विपरीत परिस्थितियों में भी एक बल एक भरोसा होकर रहे। और इस सेवा केंद्र के फाउंडेशन को मजबूत बनाया। नियम और मर्यादाओं का संपूर्ण रूप से पालन करते हुए अनेकों के जीवन को बनाने के प्रेरणा मूर्त रहे। ऐसे सभी आत्माओं को वतन में हम देख रहे हैं। दिल से यदि आप आत्माओं के प्रति हमारे से कोई भूल हुई हो, हम क्षमा मांगते हैं। आप जहाँ भी हैं वहाँ स्वस्थ रहें, सुखी रहें और अभी भी अनेकों को जीवन जीने की कला सिखाते रहें। मैसाना का सारा परिवार आप सभी आत्माओं को शत शत नमन वंदन करते हुए दिल के बड़े गहरे भाव से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। साथ ही साथ उन लौकिक संबंधियों को
इमर्ज करें। कर्म व्यवहार में भूल के कारण कोई भी प्रकार से दुख मिला हो, कोई सूक्ष्म कामनाएं अपेक्षाएं रह गई हों, सभी खूब दिल से उन आत्माओं से क्षमा याचना लेंगे। अज्ञानतावश, देह अभिमानवश कुछ भी बोलचाल दिल को आघात लगा हो, उन सभी के लिए क्षमा मांगते हैं। इस संकल्प का तर्पण है। मुक्त भाव, मुक्त भाव, पॉजिटिव एनर्जी, समर्थ संकल्प, जिससे अब तक के जो भी अवरोध आ रहे थे, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक परिस्थितियां आ रही थी, ये सभी अवरोध समाप्त। सभी पितरों के अंदर से भी वो पॉजिटिव ऊर्जा परिवार वालों के प्रति आ रही है। सर्व नेगेटिविटी, सर्व विघ्न समाप्त। पितरों का विघ्न समाप्त। पाँच मिनट सभी उन्हों को शक्तिशाली दृष्टि देंगे।